Uh, everybody is in? Fine. So last class we have studied regarding brain. Oh, sorry. Sorry, beta, sorry. So everybody is in now? Okay, fine. So last class we have studied regarding the brain. Okay, and I think you are clear with each and every section whatever we studied regarding cerebrum, cerebellum, pons, medulla oblongata. All these parts are clear to you at least. Do you have any confusion regarding that? Ma'am, can you explain again once about pons? Yes. What do you want? About pons. About? Pons. Okay, you need the description regarding pons viroli. Yes. I think I must have told you that pons is something which is establishing the coordination between your ears and eyes. बताया था? Yes. Okay. So two senses are working simultaneously, na? That means sound and the one which you see something, that means visuals. So both of them has to be coordinated and that is done by pons. Anything else? No, ma'am. Others? Right. Fine. So let's begin with the nerve cell then. Neurons. Okay. So either you say neuron, either you say nerve cell. It's one and the same thing. Okay. Now see this. This is a structure of a typical neuron for the eukaryotes. Okay. Basically eukaryotes में भी जो higher group of organisms है उसके लिए, ठीक है. So because you have not studied the diversity classification chapter last year, so probably that may be a difficult thing to understand, that how the evolution process is there, how these neurons are getting networked and how they are uh, uh, just progressing with each and particular phylum. Okay, so that part a bit difficult for you to understand, but you will get it on the track once you understand the structure and everything. So see this. फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स. हम न्यूरॉन्स की जब बात करते हैं तो न्यूरॉन इज समथिंग which is establishing the coordination between organs and brain. Okay, or just get that picture in your mind that the way your heart, जैसे हम हार्ट के बारे में पढ़ते हैं कि हार्ट जो है वो एक ऐसा यूनिट है जो ब्लड पंप करता है, लेकिन जो पंप्ड ब्लड है it will move to the organs through blood vessels only. ओके, तो ब्लड वेसल एक ऐसा पैसेज है जो ब्लड को एक प्रॉपर ऑर्गन, एक प्रॉपर जो लोकेशन है वहां तक उसको ड्रॉप करता है, वहां पर उसकी अवेलेबिलिटी को कंप्लीट करता है, ठीक है. सो सिमिलरली नर्व सेल्स जो होते हैं, न्यूरॉन्स जो होते हैं, वो आपके ब्रेन से मिले हुए जो सिग्नल्स हैं उनको ऑर्गन्स तक पहुंचाना, और ऑर्गन से मिले हुए जो सिग्नल्स हैं उनको ब्रेन तक पहुंचाना, ये जो कोऑर्डिनेशन है वो नर्व सेल्स कर सकते हैं, ठीक है. नाउ सी दिस. आप लोगों ने वो तो पढ़ा ही होगा कि नर्व सेल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, और 1 मीटर क्या होता है, बहुत बड़े होते हैं. ऑल दीज फैक्ट्स आई थिंक यू मस्ट हैव गॉन थ्रू, सो नो नीड टू डिस्क्राइब देम, बट डू अंडरस्टैंड दैट नर्व सेल्स जो होते हैं
basically the one which is given in your book, okay, that is called myelinated nerve fiber. ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो दैट इज ऑफ माइलिनेटेड नर्व फाइबर। इसी तरह से नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स भी होते हैं, नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स भी होते हैं। बट बेसिकली वाई वी आर स्टडिंग माइलिनेटेड वन, बिकॉज वी आर स्टडिंग रिगार्डिंग विथ रिस्पेक्ट टू ह्यूमंस। सो हम में ज़्यादातर जितना भी नेटवर्किंग है वो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स का है। So that's why we will be studying the myelinated nerve fiber in detail. एक बार आप myelinated पढ़ लोगे, नॉन myelinated accordingly उसके समझ में आ जाएगा, ठीक है। So see this, sorry, we will come up to structure अभी समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि माइलिनेशन मतलब होता क्या है, what do you mean by the myelinated। okay, so ये नाम है, ये क्लासिफिकेशन है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर एंड नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर, टू टाइप्स आर देयर, बट वी आर फोकसिंग ऑन माइलिनेटेड वन। वंस इट इज क्लियर फॉर यू कि माइलिनेटेड क्या होता है तो नॉन माइलिनेटेड अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो सी दिस दैट टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ नर्व फाइबर इज, और नर्व फाइबर की सबसे स्पेशल बात यह है कि जो नर्व फाइबर्स होते हैं वंस दे आर फॉर्म्ड, बेसिकली ये है तो सेल ही, ठीक है, इट्स अल्टीमेटली अ सेल, बट ये जो सेल है ये इस तरह के सेल हैं कि वंस दे आर फॉर्म्ड इन योर बॉडी, एक बार जो आपके फॉर्मेशन के ड्यू एट द टाइम ऑफ योर फॉर्मेशन व्हेन यू आर इन मदर्स वम, उस टाइम जैसे भी नर्व फाइबर जो है वो फॉर्म हो गया है आपकी बॉडी में, वो नर्व फाइबर आपके लाइफ टाइम वैसा ही रहेगा, ये डिवाइड नहीं होते, सबसे पहली चीज, ठीक है, ना ये इंक्रीज होते हैं ना ये डिक्रीज होते हैं। हाँ, डैमेज हो सकते हैं, दैट मे बी द पॉसिबिलिटी, बट द नंबर विल नेवर डिक्रीजेस और इंक्रीजेस, एंड वंस दे आर फॉर्म दे आर नॉट लाइक, बिकॉज सेल, वर्ड सेल है उसके साथ तो आप सोचोगे डिवाइड भी हो जाएगा, तो डिवाइड नहीं होता है। सो दैट्स वाई इन ये प्रॉपर पर्टिकुलर सेल को केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बॉडी के लिए, ठीक है। सो नाउ सी दिस that what it is explaining, how it is working in our body. So first of all मैं साइड में ही आपको एक सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करूंगी टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट डज दिस मीन, ओके। सो फाइन, कम अप विद दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो नर्व फाइबर्स होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। वन इज डेंड्रॉन्स, one is called dendrons, then you have cell body, okay, and then you have the axon, ठीक है। ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है ये पूरा सेल, डेंड्रॉन्स, सेल बॉडी एंड एक्सॉन, ठीक है। सो दैट पार्ट वी विल बी सी। डेंड्राइट्स, अगर डेंड्राइट्स ऐसा कुछ वर्ड यूज किया है तो मतलब प्लूरल की बात हो रही है, डेंड्राइट्स। सेल बॉडी को कई सारी बुक में साइटोन भी लिखा होगा, सो डोंट गेट कंफ्यूज कि भाई साइटोन क्या आ गया, सेल बॉडी ही है साइटोन्स, ओके। एंड देन एक्सॉन्स, एक्सॉन्स डजंट हैव अनदर नेम। सो जस्ट सी टू दिस दैट हमें ये चीज समझनी है कि राइट नाउ I am drawing the structure, a simplified one, okay. So this is something which we can call, ये branches जो आप सब देख रहे हो these are called dendrites, ठीक है, fine। So dendrites are very छोटे यूनिट्स हैं, स्मॉलर यूनिट्स, एंड दे आर बंच, जब प्रेजेंट होते हैं दे आर प्रेजेंट इन बंचेस, मतलब बहुत सारे नंबर होते हैं उनके प्रेजेंस। ब्रांचिंग होता है, मतलब आप देख सकते हो ट्री की तरह उसका ब्रांचिंग है ढेर सारा, ठीक है। एंड दे आर स्प्रेडेड ऑल ओवर द सरफेस वेरेवर दे हैव टू रिसीव द सिग्नल। सो बेसिकली व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि सपोज दिस इज माय हैंड, okay, and
स्किन के जो नीचे, जब स्किन के, क्योंकि नर्व सेल्स जो है वो हमारे अंदर है ना, तो हमको इमेजिन इस तरह से करना है कि इफ दिस इज द स्किन एंड इफ आई ओपन इट, तो जो ये डेंड्राइट्स है वो स्किन के नीचे इस तरीके से अटैच्ड है। कैन यू सी दिस? जैसे प्लग अटैच होता है स्विच में, बस उस तरीके से। तो ये डेंड्राइट्स जो है सब जो हर जगह पर स्प्रेडेड है एंड दे हैव जस्ट प्लग्ड द आवर सरफेसेस ऑफ द स्किन लाइक दिस। क्यों ऐसे स्प्रेडेड है? बिकॉज दे हैव टू रिसीव द सिग्नल्स, दे हैव टू रिसीव द सेंसेस। ठीक है, तो वॉट एवर सेंसेस, इट कैन बी हिट ऑल्सो, इट कैन बी टेम्परेचर ऑल्सो, गर्म ठंडा जो भी है, वॉट एवर दैट कैन बी फेल्ट, it can be if I just push it, if I pull it, everything, whatever reaction, physical reaction you are having on the skin, that has to be accommodated by the dendrites. Dendrites को वो receive करना है। So just understand that डेंड्रॉन्स जो हैं या डेंड्राइट्स जो हैं वो बंचेस में प्रेजेंट होते हैं, छोटे होते हैं, और दूसरी चीज दे कैन रिसीव द signals, they can receive the senses whatever you are getting on your body. Understood this part? Okay, fine. Now see this, the central unit where all the dendrons are meeting. Okay, so here I am just showing this part. See this, ये जो सेंट्रल एरिया है जहां पर सारे डेंड्रॉन्स आकर मीट करते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेल बॉडी। सो सेल बॉडी है तो दैट मीन्स इट शुड बी हैविंग द न्यूक्लियस आल्सो। तो सेंटर में इसके क्या है? न्यूक्लियस, यू हैव न्यूक्लियस ओवर हियर। ओके, एंड नाउ सी, जैसे सेल होता है तो सेल को सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के साथ उसके पास न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म वगैरह होते हैं सेल में। उसी तरीके से क्योंकि ये नर्व सेल है, तो नर्व सेल के जो साइटोप्लाज्म होगा उसको हम बोलेंगे न्यूरोप्लाज्म, दैट विल बी कॉल्ड एज न्यूरोप्लाज्म। अंडरस्टूड दिस पार्ट? ठीक है, क्योंकि नर्व सेल का साइटोप्लाज्म है इसलिए न्यूरोप्लाज्म हम इंडिकेट करेंगे, while this is a nucleus. Another special thing regarding this particular nucleoplasm is that you will find some special type of granules over here. कुछ छोटे छोटे दाने जैसी चीजें हैं, ठीक है। So it's not a plain cytoplasm. Okay, so basically these granules are called Nissen's granules. These are called Nissen's granules. Okay, pardon? I'm not getting you, beta. What you are saying? Is this inside the cytoplasm? Yes, cytoplasm. That means इसका जो न्यूरोप्लाज्म है उसी में ये ग्रैन्यूल्स की तरह कुछ पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है, स्पेशल वन, क्योंकि सारे सेल्स में ऐसी चीजें नहीं देखने को मिलती आपको। तो निसेल्स ग्रैन्यूल्स is one of the characteristics of the neuroplasm. Do understand? Is this part is clear to you? This one. Okay, so Excuse me, ma'am. yes beta. Ma'am, what are the functions of the Nissen's granules? Okay, fine. Actually, you don't have to detail that much, but do understand that this area, that cyton unit of this particular cell is the processor, is a processing unit. जैसे कंप्यूटर में होता है प्रोसेसर, होता है आपके फोन वगैरह में, Yes, ma'am. बस उसी तरीके का एक यूनिट एस्टैब्लिश करता है ये, ठीक है। सो क्योंकि डेंड्राइट्स इतने सारे हैं तो सिग्नल्स तो कितने सारे एक साथ रिसीव होते हैं, तो उन सभी को प्रोसेस करके पर्टिकुलर जगह पर पहुंचाना, सेग्रीगेट करना, वो सारा काम इस यूनिट से होता है। अंडरस्टूड दिस पार्ट? Yes, ma'am. Okay, fine. Now let's proceed for the exon, the one which is the most interesting one for the
नर्व सेल, ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है नर्व सेल का. सो सी दिस, एक्सॉन इज द लॉन्गेस्ट आर्म ऑफ द नर्व सेल. सबसे लंबा वाला यूनिट है, दैट इज कॉल्ड एक्सॉन. ठीक है. नाउ दिस एक्सॉन इज ऑल्सो एंडिंग लाइक दिस. ये भी इस तरीके से है. इट विल बी हैविंग एंडिंग जस्ट लाइक द रूट्स, प्लांट के रूट्स होते हैं, बस उस तरीके से उसके एंडिंग्स होते हैं. ठीक है. सो दैट इज द एक्सॉन. So coming out of the cytosol, the most longest process of the nerve cell is called axon. Now this axon is something having a special type of feature in it. ठीक है. तो वो special type of feature क्या है, that part we will be seeing. This longest, अब ऐसे imagine करो कि ये जो ट्यूब है, axon का जो पूरा ये ट्यूब है, it will have little bit of padding in between. Padding मतलब suppose just see this, that suppose if I cover this much of axon with this much of padding like this, okay, मैंने इस तरीके से इसको कवर कर दिया है. suppose this much is covered, then after some gap you will have the another type of padding over here. Is this part is clear to you? Yes, ma'am. ठीक है. तो हाँ, तो इस तरीके से इमेजिन करो इसको. हियर आई एम ड्राइंग. यू विल हैव इज इट वर्किंग? नहीं चल रहा. Yes. Okay. So it will have a padding like this. See this. ठीक है. फिर थोड़ी दूर पर फिर से एक पैडिंग होगा, just like this. Then again one more padding. Okay. So this is a padding of some special type of cells, और इन cells को हम बोलते हैं Schwann cells. These are called Schwann cells. Cells है तो that means इसमें न्यूक्लियस की भी प्रेजेंस होगी. So you will be having a nucleus over here. Okay. So imagine करो इसको पूरा 3D में, मतलब एक्चुअली ये ऊपर ट्यूब पे कवर्ड है पूरी तरीके से, पूरे डायमेट्रिक डायमेंशंस में है. ठीक है. सो इमेजिन हम सिर्फ सामने से आपको दिखा रहे हैं इसलिए आपको ऐसे दिखाई दे रहा है. ठीक है. तो दीज आर कॉल्ड Schwann cells. ठीक है. अब Schwann cells जहां पर गैप छोड़ देते हैं उसे हम कहते हैं नोड ऑफ Ranvier. Okay, that is called node of Ranvier. Okay, so waiting room. Okay, got it. Okay. Admitted. Deep Nil Ray. Okay, fine. So जहां पर ये सेल्स के बीच में जो गैप क्रिएट होती है, that is called node of Ranvier. Okay, now these cells are covered by one type of layer, special layer. Yes. This special area is covered by special layer that is called this is how, this is called myelin sheath. This is called myelin sheath made up of lipids and fats. उससे बनी हुई है. ठीक है. तो एक तरीके से लैमिनेटेड होता है, मतलब एक एक्सॉन है, एक्सॉन के ऊपर खूब सारे सेल्स लगे हुए हैं और उसको पूरे यूनिट को एक लिपिड लेयर जो है वो कवर कर रहा है. दैट इज कॉल्ड माइलिन शीट. नाउ यू गॉट दैट. माइलिनेटेड का मतलब क्या है? Yes, ma'am. ठीक है.
तो ये जो माइलिन शीट जो कवर कर रही है, इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स, ओके, फैट से बनी हुई होती है। दीज माइलिन शीट जो है, it will help in the proper conduction of the signals. अच्छा, लिपिड्स और फैट्स जो होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, एम आई राइट? Yes, ma'am. लिपिड्स, हाँ, They are the proper conductor of नॉट गेटिंग व्हाट यू आर आस्किंग मी। and myelin sheet is a proper conductor of प्रॉपर कंडक्टर ऑफ, आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन बेटा। See, just understand the proper fact first of all. See, myelin sheath is made up of lipids and fats. Okay, तो ये जो है एक तरीके से लैमिनेट कर देती है पूरे एक्सॉन को। अब जो नीचे का पार्ट है दैट इज कॉल्ड एक्सॉन टर्मिनल्स, इनको ये कवरिंग प्रोवाइडेड नहीं है, सिर्फ एक्सॉन जो लेंथ में जो यूनिट है सिर्फ उसी को ये कवरिंग प्रोवाइडेड है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली बिकॉज इट इज कवरिंग अ पर्टिकुलर शीट। सो अब ये जो है लिपिड और फैट्स है, तो ये क्या करते हैं, जो भी सिग्नल इस एक्सॉन के थ्रू पास हो रहा है उसको कहीं पर भी बाहर नहीं भागने देते, मतलब साइड वे कंडक्शन नहीं करने देते, वो सीधा सीधा एक ही रूट एक ही चैनल फॉलो करना चाहिए। दैट इज वाई माइलिनेशन इज प्रोवाइडेड टू द एक्सॉन। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। जिसके पास ये माइलिनेटेड शीट्स नहीं होती है वो नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स हो जाते हैं। क्लियर? ठीक है, कुछ न्यूरॉन्स में माइलिनेशन नहीं होता है, तो दे आर कॉल्ड नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। बट माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स ऐसी है जिसके एक्सॉन यूनिट को एक प्रॉपर शीट प्रोवाइडेड किया गया है, वो शीट जो है वो इम्प्रॉपर कंडक्शन नहीं होने देती। अच्छा, अब इम्प्रॉपर कंडक्शन क्या होता है वो चीज हम समझेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन इज क्लियर टू यू? yes, ma'am. गुड, Yes, ma'am. ओके। नाउ सी दिस हाउ इट इज वर्किंग, और क्या इसका फंक्शन है। माइलिनेटेड शीट जो वाली जो नर्व फाइबर्स है वो हमारी बॉडी में क्यों होनी चाहिए, दैट पार्ट वी विल बी स्टडिंग। सी दिस फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वन, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन समझो। आप रिफ्लेक्स एक्शन क्या समझा रहा है हमको, कि जो भी आपकी ये नर्व फाइबर्स होती है, ठीक है, इनका काम क्या है, सिग्नल को ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाना, वहां तक पहुंचाने के बाद रिस्पॉन्स देना, ठीक है। अच्छा, अब दो चीज समझो कि जब भी सिग्नल कोई भी सेंसरी पार्ट जो है अगर ब्रेन तक सिग्नल जाता है, ठीक है, न्यूरॉन्स के थ्रू अगर ब्रेन तक सिग्नल जाता है तो ब्रेन क्या करता है, डिसीजन लेता है, सही है गलत है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मतलब पूरा एक प्रोसेसिंग यूनिट है कि भाई अल्टीमेटली मुझे देना क्या है, उसके बदले में रिस्पॉन्स क्या देना है, दैट इज डन बाय ब्रेन, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास ये वाला टाइम नहीं होता है डिसाइड करने का, तब कौन काम करता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, आपका जहाँ ब्रेन खत्म हो जाता है वहां से स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होता है। दैट स्पाइनल कॉर्ड इज वेरी मच ऑर्गेनाइज्ड यूनिट, उसके पास छोटे छोटे जंक्शंस हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि क्या करना चाहिए। सो सी दिस हाउ इट इज वर्किंग। सो कैन यू सी दिस मच ऑफ पार्ट ऑफ इट? सी, आप ये वाला यूनिट देख रहे हो, Yes, ma'am. ठीक है। दिस मच यूनिट इज अ सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। हम आपको क्या दिखा रहे हैं, एक स्पाइनल कॉर्ड का एक चिप निकाला है कट करके और वो आपके सामने रख दिया है। तो वो कैसे बना हुआ है, दैट पार्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सी, दिस इज ग्रे मैटर, जैसे ब्रेन में था ग्रे मैटर, बस वो है वैसे ही, और दिस इज कॉल्ड व्हाइट मैटर, ओके। नाउ व्हाट हैपेंस दैट suddenly
आप ये वाले रिस्पॉन्स को समझोगे आप। नाउ सपोज यू आर वॉकिंग ऑन अ ग्रास बेयरफुट, ठीक है, बेयर फीट आप वॉक कर रहे हो और आपके पैर में अचानक से कुछ काट लेता है या कुछ चुभ जाता है, तो आप क्या करोगे? आप बैठ के सोचोगे कि हाँ अब मुझे कुछ चुभा है तो मुझे अपना पैर उठाना चाहिए और उसको बैठकर या खड़े होकर ऐसे करके देखना चाहिए कि मुझे क्या हुआ है। उसके बाद अगर काटा है तो मुझे धीरे से निकालना है, कीड़ा है तो जल्दी से चिल्लाना है और फिर उसको हटाना है और इधर उधर भागना है। इतना टाइम होता है आपके पास? नो मैम। नहीं होता, ठीक है। तो जब आपको ऐसी कुछ चीज लगती है या ऐसे कुछ चीज तुरंत जो इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में होती है, जैसे ही आपको चुभता है आपका पहला रिस्पॉन्स होता है ऐसे करके पैर हटा कि क्या लग गया, तुरंत आप उसको देखोगे। कीड़ा है तो इतना फास्ट रिएक्शन हो जाएगा कि उस कीड़े को पता नहीं भगा के कहाँ मानोगे, प्लेनेट के बाहर ही निकाल दोगे, ठीक है। सो सी दिस दैट this particular unit the one which receives, ठीक है, उसको एक सिग्नल मिला कि भाई ऐसे ऐसे चीज हुई है, अब मैं क्या करूं, ठीक है। सो वो रिसीव करेगा सिग्नल्स को। सी ये है रिसेप्टर सेल्स, ठीक है। रिसेप्टर मतलब जो रिसीव करते हैं वो। सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी मतलब जिसको सेंस पता चला कि अच्छा मुझे कुछ हो रहा है, स्किन पर कुछ हो रहा है, तो वो सेंस को गेन करेगी, रिसीव करेगी। सिग्नल जो है वो तुरंत भागते दौड़ते पहुंचेगा किसके पास? स्पाइनल कॉर्ड के पास। जैसे ही स्पाइनल कॉर्ड के पास पहुंचेगा तो यहाँ पर बीच में एक है रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन, रिले रेस खेला है आपने कभी स्कूल में या देखा है? यस मैम। रिले में क्या Yes, होता है ma'am. कि हम एक वो लेके भागते हैं, उसके बाद वो हैंड ओवर कर देते हैं, फिर वो आगे लेके भागता है, यही काम होता है रिले में, ठीक है। Yes, ma'am. तो सिमिलरली यहाँ पर ये जो सेंसरी न्यूरॉन है ये सिग्नल को तुरंत रिसीव करके फटाफट लेकर जाएगा स्पाइनल नर्व में। इसमें फटाफट ये स्पाइनल कॉर्ड के पास पहुंचा। वहां जाने के बाद यहाँ पर ये कुछ छोटे छोटे यूनिट्स हैं, डोर्सल रूट गैंग्लियन और ये सब जो चीजें हैं वो आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस स्ट्रक्चर वाइज ये लेबलिंग्स याद कर लेना क्योंकि इनकी डिटेलिंग थोड़ी ज्यादा है, अभी आपको ये चीज पढ़ने की जरूरत नहीं। देन इट कम्स टू दिस पर्टिकुलर यूनिट, देखो ग्रे मैटर में एंटर हो गया। ग्रे मैटर में ये रिले न्यूरॉन जो है वो उसका वेट करेगा कि भाई कोई सिग्नल आया है, जल्दी जल्दी उसको गेन करो। तो दिस पार्ट देखो ये भी साइटोन है, साइटोन के इस इधर डेंड्राइट्स बने हुए, वो डेंड्राइट्स क्या करेंगे, इस सिग्नल को फटाफट ले लेंगे और प्रोसेस करके तुरंत ही उसको पास ऑन करेंगे नेक्स्ट पर्टिकुलर न्यूरॉन को। देखो इसके पास भी डेंड्राइट्स है, एक्सॉन जहां पर एंड हो रहा है वहां पे, और ये जो डेंड्राइट्स है वो ये रिस्पॉन्स को, रिस्पॉन्स आपका क्या होगा, जो आपने पैर हटा के ऐसे किया, फटाफट देखा, चीखा, चिल्लाया, जो भी किया, ठीक है, वो रिस्पॉन्स को लेके ये जल्दी जल्दी भागेगा और आपके मसल तक पहुंचाएगा कि आपको क्या करना है, जो आप आपके मिली सेकेंड्स में आप ये काम कर लेते हो। एम आई राइट? Yes, ma'am. ठीक है, दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सी दिस दैट, तो दैट मीन्स हर चीज हम ब्रेन पे नहीं छोड़ देते कि भाई ब्रेन जब बताएगा तभी हम ये सारा काम करेंगे। ऐसे छोटे मोटी जो चीजें हैं वो स्पाइनल कॉर्ड ही संभाल लेता है कि हमको क्या करना है। जैसे कि अब बहुत सिंपल सा यूनिट है, ये फंक्शनिंग बहुत सिंपल है इसका। आपको अचानक से किसी ने पीछे से सपोज आप अपने स्कूल में या कहीं पर घर के आसपास अपने दोस्तों के साथ बाहर निकले हो छोटे से वॉक पे या किसी भी चीज़ पर, और सडनली आपका कोई बदमाश सा जो दोस्त आता है वो आपको पीछे से धक्का दे देता है, तो आपका पहले तो आप अपने खुद को संभालोगे और दूसरा रिएक्शन क्या करोगे, या तो बचने की कोशिश करोगे और साथ में उसको मारने की कोशिश करोगे। ये चीज होती है। Am I right? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. अच्छा, अब एक और सिंपल सी कंडीशन को इमेजिन करो कि बहुत सिंपल है, आप आराम से घर में बैठे हो, ठीक है,
आपके सिबलिंग्स, जो आपके भाई बहन जो है, बड़े या छोटे सिबलिंग्स में, क्योंकि लड़ाई वो होना बहुत ही कॉमन सीन होता है घर का। आपके बहन ये ने या भाई ने आपको बैठे बैठे ऐसे कर दिया, बिना कोई मैटर को डिस्कस किए बिना, आपका क्या रिएक्शन हुआ? क्यों मारा मुझे? और सड़क से आप उसको रिवर्ट कर देते हो, है ना? होता है ऐसा। आप ये नहीं पूछते हो तूने मस्ती की, क्यों भाई क्या हो गया तुझे बैठे बैठे कि क्यों तुम मुझे मार रहे हो? हाँ, वो बहुत कभी कभी रेयरली ऐसा आप पूछोगे। पहला आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? क्योंकि आप ऑनलाइन क्लासेस से थके हारे जाकर बैठोगे और सडनली आपके सिबलिंग्स आएंगे, आपके सर पे नाचने लग जाए या आपको आपके बाल खींच दे या आपको मार दे, तो आपका पहला रिस्पॉन्स होगा कि उसको थप्पड़ लगाओ और किनारे लगाओ। एम आई राइट? यस मैम। तो ये रिस्पॉन्स आपका किससे आता है? इस पर्टिकुलर रिफ्लेक्स एक्शन से, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ये एक आर्क बनता है एक्शन का, ठीक है? दैट इज हाउ। नाउ सी दिस, अगर उसी कमरे में आपके पापा आ जाए और आपके पापा आपसे बात कर रहे हैं और वो गुस्सा हो रहे हैं, आपको अंदर अंदर गुस्सा आ रहा है कि क्यों बोल रहे हैं, मैं तो सब करता हूँ, मुझे नहीं सुननी इनकी बात, पर आपका रिएक्शन ये होगा कि आप उठ के थप्पड़ लगाओगे? नो मैम। नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि वो सिग्नल किसके पास जा रहा है? ब्रेन के पास जा रहा है। ब्रेन एनालाइज कर रहा है कि ये आवाज पापा की है, हमको कैसे रिस्पॉन्स देना है वो हमको पता है, ठीक है? क्योंकि अगर थोड़ा सा भी गलत रिस्पॉन्स हुआ तो घर का दरवाजा और तुम बाहर होगे, दरवाजा बंद हो जाएगा। एम आई राइट? यस मैम। ठीक है? दैट इज वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड। दैट इज हाउ द होल रिस्पॉन्स फैक्ट्री वर्क्स इन अवर बॉडी। हमको किस किस चीज को कैसे एनालाइज करना है वो हमें बहुत, ब्रेन और हमारे स्पाइनल नर्व्स जो होते हैं वो हमें पूरी तरह से प्रोग्राम्ड रखते हैं, ठीक है? सडनली जैसे आप कभी कभी एकदम बहुत अच्छे कंसंट्रेशन के साथ बैठे हुए हो, घर में पढ़ रहे हो, अचानक से घर के पास किसी की बारात आती है और फटाका फूट जाता है, तो आप लोग डर जाते हो, यस मैम। ठीक है? तो वो सडन रिस्पॉन्स है। आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी अचानक से आपको पसीना, किसी को ज्यादा डर लगता है तो पसीना भी आ जाएगा। दैट इज व्हाट द रिस्पॉन्स गिवन बाय दिस पर्टिकुलर रिफ्लेक्स आर्क। ओके, इसको बोलते हैं एक आर्क बनना जो सडन रिस्पॉन्स आपकी बॉडी में क्रिएट करती है। अंडरस्टूड दिस पार्ट? यस मैम। ओके, Yes, सो ma'am. एवरीथिंग इज बीइंग प्री डिसाइडेड, मतलब आपकी बॉडी में सब कुछ प्रोग्रामिंग है, वो बहुत ही फंक्शनली काम कर रही है कि किस सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचना चाहिए, किसको स्पाइनल नर्व से ही काम निपट जाना चाहिए। दैट इज हाउ इट इज बीइंग डन। अच्छा, अब जैसे आपको मैंने बोला कि आप गार्डन में चल रहे हो, आपको लग गया, आपने तुरंत उसको जो रिस्पॉन्स दिया वो ठीक है, लेकिन जब आप काम डाउन हो जाओगे तो क्या होगा? आप बैठोगे, उस चोट को देखोगे कि भाई कितनी लगी है, ज्यादा लगी है कि पट्टी लगानी पड़ेगी, दवा करनी पड़ेगी, या ऐसे ही ठीक हो जाएगा। दैट जो पूरा एनालिसिस है वो ब्रेन करता है बाद में। अंडरस्टूड दिस? यस मैम। सो दिस इज हाउ दीज थिंग्स वर्क। सो जो सिग्नल रिसीव करता है रिसेप्टर एंडिंग से, दे आर कॉल्ड सेंसरी न्यूरॉन्स, और जो आपको रिस्पॉन्स देने में हेल्प करता है दे आर कॉल्ड मोटार न्यूरॉन्स। उनको हम क्या बोलते हैं? मोटार न्यूरॉन्स। मोटर मत बोलना, मोटर हिंदी वर्ड है, बट दे आर कॉल्ड मोटार न्यूरॉन्स। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? ठीक है। रही बात अगर आपके टेक्स्ट बुक्स में, क्योंकि ये सारी जो लेबलिंग्स होंगी, डोर्सल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व, वेंट्रल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व, ये सब क्या होता है, तो बेसिकली द थिंग इज देर इज लिटिल बिट ऑफ हाफ इंफॉर्मेशन इन द नोटबुक, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड का कोई स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए नहीं दिया है टेक्स्ट बुक में। सो द थिंग इज ये जो है आपके सामने प्लेस करके दिखा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली स्पाइनल नर्व तो ऐसे होगी ना आपकी बॉडी में, जो पूरा ये जो स्पाइनल, इट शुड बी लाइक दिस प्लेट। सो ऐसे रन कर रहा है वो, ठीक है, और ऐसे सारे यूनिट को फॉलो कर रहा है। सेम थिंग विल बी ऑन दिस साइड ऑल्सो, यहाँ पे भी ऐसे ही नर्व्स का वो जो पूरा नेटवर्क होगा, इस तरफ भी एक रिले न्यूरॉन होगा जो इस साइड की बॉडी को मैनेज करेगा, और ये वाला जो है वो इस साइड की बॉडी को मैनेज करेगा। सो दिस इज हाउ इट विल वर्क। तो कुछ तो लेबलिंग्स हैं जो आप ऐसे ही अभी पढ़ लो,
व्हेन यू विल बी इन प्रॉपर बायोलॉजी, आप जब पढ़ोगे 11th 12th साइंस में, देन यू विल हैव टू स्टडी कि भाई ये एक्चुअली डोर्सल रूट क्या है, वेंट्रल रूट क्या है, एट दैट टाइम यू हैव टू फॉलो. टिल देन वॉट एवर यू हैव टू अंडरस्टैंड, वो सारे मैंने लेबलिंग्स आपको क्लियर कर दी. इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? Yes, ma'am. Good. Yes, ma'am. Okay, so now see this, the thing regarding this particular structure, ये जो हमने पढ़ा, ठीक है, ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर. सो हमारे जो सारे न्यूरॉन्स हैं हमारी ब्रेन से स्टार्ट होते हैं या जहाँ से भी उसको रिसीव करना है और देना है, तो जो उनकी अरेंजमेंट है वो सभी की ऐसी ही है. दे विल हैव डेंड्राइट्स ऑन वन साइड, axon at one side, then axon ending should be there, then again another one will be like this, then like this. So they are all linearly arranged. ऐसा नहीं है कि एक जो है ऐसे अरेंज्ड है और दूसरा जो है वो ऐसे अरेंज्ड है. दिस इज द रॉन्ग थिंग. ठीक है, ऐसा अरेंजमेंट कहीं पर भी नहीं. ये बहुत ही प्रॉपर वो उससे है. डेंड्राइट्स को हमेशा चीजें रिसीव करनी है, एक्सॉन को आगे बढ़ाकर दे देनी है. तो ये जो पर्टिकुलर एक्सॉन हमने ड्रॉ किया, इसके बाद वापस से एक नर्व सेल होगा जो डेंड्राइट्स उसके इस पर्टिकुलर एक्सॉन टर्मिनल को फेस करेंगे और वो उस बाकी सिग्नल को रिसीव करेंगे. ये चीज समझ में आ गई? Yes, ma'am. गुड. नाउ सी दिस. अब ये माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, ये माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स हैं, इनके पास जो ये ब्लॉक से ये ब्रिजेस जैसे जो क्रिएट कर रहे हैं लाइक दिस, ठीक है. तो ये नोड ऑफ रेडवियर एक्चुअली करता क्या है, हाउ दीज थिंग्स आर वर्किंग ओवर हियर. सी दिस, हमारी बॉडी इतनी ज़्यादा मतलब बोलते हैं फास्टेस्ट प्रोसेसर है यूनिवर्स में. हाउ इट इज डूइंग द मतलब पूरा जो है ये सिग्नल को पास करने का जो टाइम लेती है. सी दिस दैट कि माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स हैं, तो जब सिग्नल जैसे ही डेंड्राइट्स को रिसीव हुआ, साइटॉन में प्रोसेस हुआ और एक्सॉन को मिला, तो एक्सॉन बहुत लंबा है, तो सिग्नल जो है जब वो उसमें से पास होगा, तो अगर वो धीरे धीरे पास होगा तो ऐसे तो कल तक पता चलेगा. जैसे सपोज अभी मैंने किसी चीज को देखा, तो वो मैंने देखा, अब वो जो सिग्नल है वो मेरे ब्रेन तक कब पहुंचेगा, मेरा ब्रेन मुझे कब समझाएगा कि मैं क्या देख रही हूँ, तो इतना टाइम नहीं है. तो इसलिए सिग्नल को जो है वो इन ऐसे करके एक ब्लिंक ऑफ आई में पहुंच जाना है ब्रेन तक. तो वो कैसे पहुंचता है, ये माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स में जब सिग्नल रन करता है, इट विल जंप फ्रॉम नोड टू नोड. वो नोड टू नोड जंप करता है और वो इतनी जल्दी जंप करता है कि आप अगर अपने रिस्पॉन्स या सेंसेस को काउंट करोगे तो विद इन 0.01 मिली सेकेंड्स में ये सिग्नल जो है ब्रेन तक पहुंच जाता है. कैन यू इमेजिन दिस? ठीक है. सो इट विल जंप. अब सिंपल है, आपको कोई 100 मीटर रेस रन करने को बोलेगा कि भाई 100 मीटर रन करो, तो आप 100 मीटर जो है यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है दौड़कर, या फिर आपको बीच में जो है कुछ ऐसे यूनिट्स दे दिए गए हैं कि सिर्फ उसी पे पैर रख के 100 मीटर तक पहुँच जाना. तो आप कैसे वाले में जल्दी पहुँचोगे? जो जंप वाला यूनिट है उसमें जल्दी पहुँच जाओगे ना. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. ये जो नोड्स बने हुए हैं बीच में, ये उसको एक जंप, ये कैसे जंप करते हैं, क्यों जंप करते हैं, अभी नहीं पढ़ना है. ठीक है, जस्ट अंडरस्टैंड कि कुछ इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम आता है, एक इलेक्ट्रिसिटी डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं और उसी की वजह से ये सिग्नल्स जो हैं फटाफट जंप करके आपके पर्टिकुलर जगह तक पहुंच जाते हैं. दिस इज हाउ दे विल 0.01 मिली सेकेंड्स. आप इमेजिन करो कि कितनी जल्दी, क्योंकि द मोमेंट आपने खुद ही देखा है कि जब आप जैसे ही किसी चीज, सुबह उठते हो, आपने आंखें खोली, कोई भी पहली चीज आपने देखी, तो आपको प्रोसेस करने में देर होती है कि मुझे घड़ी देखनी है. अगर
तो मैं टाइम देख रही हूँ, समझ में ही नहीं आ रहा है कि 1 कहाँ है 2 कहाँ है। नींद की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको पता चलता है ना कि घड़ी कहाँ देखना है मुझे, या मेरे सामने अगर कोई चीज़ रखी है तो मुझे उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। कैन यू डू दैट पार्ट? Yes, ma'am. Okay, so that is what you have to understand regarding the myelinated nerve fiber. अच्छा, जो नॉन माइलिनेटेड है ना, उसमें ये जंपिंग प्रोसेस नहीं होता है, उसमें सिग्नल जो है वो आराम से टहलते हुए पहुंचता है, ठीक है, धीरे धीरे। जैसे आपको टीचर्स की बातें मुझे लगता है नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर से ही जाती होंगी, पहुंचती नहीं है दिमाग तक, चाहे जितनी भी कोशिश कर लो। एम आई राइट? और जो खड़ूस टीचर होते होगा उसका तो खास बिल्कुल भी नहीं पहुंचेगी, ऐसा लगता है। मम्मी की, पापा की बातें जो है वो माइलिनेट नॉन माइलिनेटेड से दौड़ती होंगी, ठीक है, आराम से पहुंचती है। मम्मी ने बोला है कि अपना कबर्ड साफ कर देना, वो हमको 7 दिन बाद समझ में आता है कि कबर्ड साफ करना है ना। और वो भी Yes, ma'am. हाँ, और वो भी क्यों समझ में आता है, क्योंकि सर पे या तो कोई है ना पापा या कि मम्मी का जो बेलन है वो खड़ा हो गया होता है कि अब तुमने साफ नहीं किया तो तुम्हारी पिटाई हो जाएगी। तब नॉन माइलिनेटेड से सिग्नल जाता है, भाई करो करो वरना आज खाना नहीं मिलेगा, ठीक है। सो दैट इज हाउ द थिंग्स आर वर्किंग। बेसिकली नॉन माइलिनेटेड जैसा हमारी बॉडी में बहुत कम ही जगह पर है, हमारी बॉडी ज़्यादातर माइलिनेटेड नर्व फाइबर से ही कंस्ट्रक्टेड है, ठीक है। सो दैट पार्ट आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल ऑफ द स्पीड, you know why myelinated nerve fibers are programmed in our body. Is this part is clear to you? Yes, ma'am. Got it? So this is how the things are working regarding the nerve cell. और reflex arc, ये जो arc बना है पूरा रिस्पॉन्स का, जो कि ब्रेन तक नहीं जाना है, सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड से ही सब चीजें कर देनी है, तो वो जो चीज इसलिए जब क्विक रिस्पॉन्स होता है ना तो राइट या रॉन्ग कंसिडर नहीं होता है। Understood? Suddenly that will be the quick one. You are not analyzing it, you are not judging it. It is in movement only. जैसे आपको गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया, तो आपने उस टाइम पर चीजें तोड़ दी, फोड़ दी, आपको चोट लग गई, मैं गुस्से में वो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ऑल दीज थिंग्स जो है आपको ब्रेन जो है वो उस टाइम कंट्रोल करना छोड़ देता है, भाई तुम पागल हो रहे हो तो हो जाओ, मुझे कुछ नहीं करना, जब शांत हो जाओगे तब समझाएंगे तुमको। अंडरस्टूड दिस पार्ट? ठीक है। सो दैट इज व्हाई we do have to understand this is how the brain works, this is how our nervous system works. Okay, so see this, अभी यहीं पर खत्म नहीं हो जा रही है बात, अभी इतना आसानी से थोड़ी सिग्नल पास होगा। we have to follow the another one that is called neuromuscular junction. अच्छा, अब ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है, ये एक और अच्छी चीज़ है। ये जो एक्सॉन टर्मिनल्स होते हैं, जहाँ पर एक्सॉन खत्म हुआ और जहाँ पर टर्मिनल्स फॉर्म हुए, तो दूसरा या तो न्यूरॉन होगा या तो वो जिस मसल पर जाकर वो खत्म हो रहे हैं ये एक्सॉन्स जाके वो जगह पर एक वो फॉर्म करेगा, एक नेटवर्क फॉर्म करेगा। तो सी दिस, जैसे ट्रेन होती है, ट्रेन की जो रेल लाइन होती है वो जुड़ी हुई नहीं होती है, दूर होती है ना, वो तो आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा शायद छोटी क्लासेस में कि गर्मी में क्योंकि आयरन पिघलता है इसलिए उसको दूर रखते हैं, ऐसे कुछ है ना। हाँ, तो जब हमारे न्यूरॉन्स हैं, ये डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, देन एक्सॉन, दीज आर एक्सॉन टर्मिनल्स। सिमिलरली ये जो डेंड्राइट्स हैं वो इससे थोड़ा सा दूर रहते हैं, चिपके हुए नहीं रहते आपस में, दे हैव अ लिटिल बिट ऑफ गैप ओवर हियर। दिस गैप, अगर ये सपोज यहाँ पर मसल है तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस हो जाते हैं, नहीं तो न्यूरो जंक्शंस होते हैं। दो न्यूरॉन्स के बीच में है तो न्यूरो जंक्शंस, और मसल और न्यूरॉन्स के बीच में है तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, पर काम ऑलमोस्ट सभी का एक जैसा है। सो सी दिस पार्ट हाउ इट इज वर्किंग। आई एम जस्ट टेकिंग दिस मच ऑफ पार्ट ऑफ इट, ये पार्ट ले रहे हैं और मैं इसको जूम करके आपको दिखा रही हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है। सो दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड द नर्व एंडिंग। ये एक्सॉन आपका एंड हो रहा है इस तरीके से, जो ये जरा छोटा सा पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये अगर आप बड़ा करके देखोगे तो कुछ कुछ ऐसा है। नाउ व्हाट हैपेंस दैट, एंड हियर यू विल बी हैविंग द another surface
सपोज मसल्स है, ठीक है, सो दीज आर द मसल एंड दिस इज द एक्सॉन एंडिंग, एक्सॉन टर्मिनल्स, ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल। अब आपका जो भी आपका सिग्नल है, सेंस आपको जो मिला वो यहाँ पर बढ़कर आगे आया, ठीक है। अब उसको ये जो गैप है वो क्रॉस करना है, इट हैज टू क्रॉस दिस मच ऑफ डिस्टेंस। सो क्या करेगा, अब यहाँ पर तो कोई नोड ऑफ रेनवेयर नहीं है, यहाँ पर कोई माइलिनेटेड नर्व फाइबर ऐसा कुछ भी ऐसा या रिले न्यूरॉन भी नहीं है जो इस पर्टिकुलर सिग्नल को इस जगह से इस जगह पर दे सके। सो दिस इज जस्ट अ गैप, ठीक है। तो अब सपोज एक इमेजिन करो कि एक वैली है, दो माउंटेन्स के बीच में एक वैली की प्रेजेंस है। अब आपको इस माउंटेन से उस माउंटेन पर अगर जाना है तो या तो आपको उड़ना आना चाहिए, है ना, क्योंकि आप अगर या तो आपके पास एक तरीका है, उतरो पूरा वैली से नीचे और उस वैली पे चढ़ना सीखो, तभी आप वहां तक पहुंच पाओगे। बट आपको अगर सीधे पहुंचना है तो आपके पास कोई एक चैनल होना चाहिए जिसके थ्रू आप वहां तक, या तो ब्रिजिंग होनी चाहिए, ब्रिज होगा तो आप सीधे सीधे पहुंच जाओगे, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा, ये एक्सॉन्स जैसे ही सिग्नल को रिसीव, एक्सॉन टर्मिनल तक आ जाता है सिग्नल, तब यहाँ पर बहुत सारी चीजें काम करना शुरू करती हैं। तो क्या काम करती हैं, दैट मीन्स यहाँ पर कई सारे कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस होती है। ये कैल्शियम आयन तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं कि भाई सिग्नल आया, उसको आगे पहुंचाना है, चलो हम काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। सो ये कैल्शियम आयंस जो है वो एक्टिवेट होते हैं और वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइप का बहुत ही स्पेशल केमिकल है उसको जाके ट्रिगर करते हैं कि नाउ इट्स टाइम कि आप रिलीज हो, आप यहाँ से निकलो, ताकि ये जो सिग्नल है उसको हम आगे पहुंचा सके। सो सडनली व्हाट विल हैपन, दैट जो इनएक्टिवेटेड केमिकल था वो एक्टिवेट होता है ड्यू टू कैल्शियम, और थ्रू अ प्रॉपर वेसिकल्स, छोटे छोटे वैक्यूल्स या वेसिकल्स फॉर्म होते हैं, और वो क्या करते हैं, इस जगह से उस पर्टिकुलर केमिकल को यहाँ पर डिफ्यूज करते हैं, रिलीज करते हैं, इन शॉर्ट। नाउ दिस पर्टिकुलर केमिकल ये जैसे ही रिलीज हुआ, इसको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, इसको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। हमारी बॉडी में जो सबसे कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर है उसका नाम है एसिटाइल कोलाइन, ठीक है। और भी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ये इकलौता नहीं है, बट ये बहुत जनरल वाला है जो हर एक जंक्शन पे देखने को मिलेगा, ठीक है। सो एसिटाइल कोलाइन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है, ये कुछ नहीं है, एक टाइप का स्पेशल फ्लूइड है, स्पेशल केमिकल है, वो यहाँ पर एक रिवर जैसी क्रिएट करेगा, ठीक है। तो रिवर मतलब ये वैली जो है वो पूरी भर चुकी है फ्लूइड से। अब जैसे ही ये रिवर जैसा बन जाएगा तो ये जो सिग्नल्स हैं वो तुरंत ही एक छोटे से यूनिट में बैठ के ये सिग्नल को क्रॉस करेगी और वो मसल्स तक पहुंच जाएगी, और ये मसल्स के पास रिसीविंग यूनिट्स होंगे जो इस पर्टिकुलर सिग्नल को पकड़ लेंगे कि भाई आ जाओ अब आगे। सो दिस इज हाउ द सिग्नल इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर और फ्रॉम न्यूरॉन टू मसल ऑल्सो, किस कहीं पे भी है, क्योंकि लास्ट न्यूरॉन होगा तो मसल आ जाएगा, तो दैट्स वाई यू हैव टू सी लाइक दैट कि भाई वो मसल पे पहुंचे। अगर दूसरा न्यूरॉन है तो वो डेंड्राइट्स रिसीव कर लेंगे उस पर्टिकुलर सिग्नल को, क्योंकि जो उसके नीचे जो दूसरा डेंड्रॉन है वो रेडी होगा कि भाई नया सिग्नल आया, उसको मुझे रिसीव कर, सो इट विल बी रिसीविंग लाइक दिस। इसलिए डेंड्रॉन्स बहुत सारे होते हैं, क्योंकि जितनी सारी नर्व एंडिंग्स हैं, जो एक्सॉन टर्मिनल्स हैं, वो सब के सब सिग्नल देना शुरू करते हैं। तो डेंड्राइट्स हैज टू बी लार्ज इन नंबर, फाइन। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ जैसा ही सारा सिग्नल जो है वो इस जगह पर पहुंच गया, सपोज ये पर्टिकुलर जगह पर, अरे कहाँ चला गया, हाँ ठीक है। सो वंस इट इज क्रॉसिंग दिस पर्टिकुलर एरिया, जैसे ही सारा का सारा सिग्नल इस तरफ आ गया, ठीक है, ठीक,
ये सिग्नल जो है अब मसल्स में पहुंच चुका है, ठीक है। तो अब ये जो पर्टिकुलर फ्लूइड है, इट विल जस्ट डिटोरिएट, इट विल जस्ट वैनिश फ्रॉम दिस प्लेस विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। ये यहाँ पर कभी भी ठहरता नहीं है, अंडरस्टूड। ये सिर्फ और सिर्फ तब रिलीज होता है जब सिग्नल को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाना है। वंस द सिग्नल इज बीइंग क्रॉस्ड तो ये फिर से हट जाएगा। हाँ, अगर तुरंत ही दूसरा सिग्नल आ रहा है तो नया फ्रेश न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो रिलीज होगा टू पास दिस सिग्नल फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर। एक ही न्यूरोट्रांसमीटर वहां पर नहीं रुकेगा। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? Yes, ma'am. ठीक है। सो दिस इज हाउ द जंक्शन ऑफ द टू न्यूरॉन्स or the junction between the neuron and the muscles are working. Got it? मैम इसी को ही क्या साइनेप्स कहते हैं? Yes. ये जो गैप है इसको हम बोलते हैं साइनेप्स। जो गैप है इसी को हम बोलते हैं साइनेप्स, ठीक है, या साइनेप्टिक जंक्शन, साइनेप्स, एनीथिंग यू कैन से। इज इट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. ठीक है। सो दिस इज हाउ द थिंग्स आर वर्किंग इन आवर बॉडी। इतनी सारी चीजें जब कोऑर्डिनेट करती है तब हमको समझ में आता है कि हमें रिस्पॉन्स क्या देना है, हम क्या सुन रहे हैं, उसको क्या एनालाइज करना है। एवरीथिंग इज बीइंग अंडरस्टूड लाइक दिस ओनली। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड रिगार्डिंग न्यूरॉन्स, देन न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस, and the last one is reflex arc. Got the idea? Yes, ma'am. ठीक है। So that is what you have to understand. Now I just want to ask you, is there any doubt which you have not understood in this? Now could you please explain the synapse one again? Synapse part again. Yes, ma'am. Okay, so that is what the thing is. Synapse is nothing but a big gap between the two neurons, successive neurons, या फिर एक मसल और न्यूरॉन के बीच का जो गैप है that is called synapse, ठीक है। तो सिग्नल को जो है मूवमेंट द सिग्नल इज बीइंग कैरिड आउट एंड इट इज फॉरवर्डेड थ्रू एक्सॉन टर्मिनल। अब वो इस गैप को क्रॉस नहीं कर सकता है, तो वो इस गैप को क्रॉस करने के लिए क्या करेगा, इट विल जस्ट रिलीज द न्यूरोट्रांसमीटर इन दैट प्लेस, दैट इज कॉल्ड एसिटाइल कोलाइन। और जैसे ही वो ये फ्लूइड को रिसीव इस जगह को फिल करेगा, ये सिग्नल जो है वो यहाँ से स्विम करके धीरे धीरे दूसरे पार्ट पर पहुंच जाएगा। और जैसे ही सिग्नल पूरा इस तरफ आ गया तो ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है यहाँ से तुरंत ही डीजनरेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा इस जगह पर से। अब समझ में आया? Yes, ma'am. Thank you. Okay, this is how the things are doing the function over here. Okay, any other doubt? No, ma'am. ठीक है। अच्छा देखो, अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो क्यों डीजनरेट हो जाता है, क्यों वो वहां रहता नहीं है? उसको रहना चाहिए ना, क्योंकि बाद में पीछे से तुरंत तो दूसरे सिग्नल्स आते ही रहते हैं। जब तक हम सोते नहीं हैं तब तक हमको कुछ ना कुछ दिखाई सुनाई देता ही रहता है, टच होता ही रहता है, तो सेंसेस तो मिलने ही वाले हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर को कम से कम दिन में तो वहां रहना चाहिए, बट वाई इट इज नॉट स्टेइंग ओवर देयर? सी, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। सपोज अभी मैंने सिग्नल दिया अपने न्यूरॉन्स को कि मुझे फिंगर को ऐसे ऐसे मूव करना है, ठीक है, फिर मैंने रोक दिया। अब मुझे सिग्नल मैंने देना बंद कर दिया कि भाई मुझे ऐसा फिंगर मूव नहीं करना है, इट्स ओके, अब मेरा पेन चला गया। बट सपोज मेरा जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो उस जंक्शन से अगर हटा नहीं तो क्या होगा, मेरी फिंगर जो है वन जो उसने एक बार रिस्पॉन्स लिया वो हमेशा ऐसे ही करते जाएगी, इट विल नॉट बी एबल टू स्टॉप। अंडरस्टूड दिस पार्ट? Yes, ma'am. ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूअस मैसेज ब्रेन को यही मिलेगा कि इस बॉडी पार्ट को मूव करने का सिग्नल आया है तो मूव करते रहो।
पर वो ये नहीं समझेंगे कि ये नहीं समझ में आएगा, ये मैपिंग नहीं हो पाएगी कि भाई ऐसा करने से रुकना भी है और रुकने के लिए समझना भी ज़रूरी है. दैट पार्ट विल नॉट बी अंडरस्टूड बाय द पर्टिकुलर इंडिविजुअल. अंडरस्टूड? गॉट दैट? Yes, ma'am. ठीक है. और सिमिलरली जो पैरालाइज्ड पीपल होते हैं, जिनको पैरालिसिस वगैरह हो जाता है, उनके ये न्यूरोट्रांसमीटर्स काम नहीं करते हैं. इसीलिए जब आप उनको ऐसे ऐसे करके, अगर पैरालाइज्ड है, आपने देखा होगा डॉक्टर जब चेक करते हैं तो हैमर से उनको बीट करते हैं यहाँ पर या फिर पैरों में नीचे. देखा है कभी? नो. Yes, ma'am. ग्रेट. Video अगर पे. हाँ, वीडियोस में देखा होगा, मूवीज हैं कितनी सारी, उसमें देखा होगा, या फिर डिस्कवरी में कई सारे ऐसे आती हैं चीज़ें. मेडिकल साइंसेस में आई थिंक इंटरेस्टेड नहीं है क्लास 10, तो कोई बात नहीं. बट मूवीज़ में है, बहुत सारी मूवीज़ में आप देखोगे तो उसमें डॉक्टर कई बार छोटी सी हैमर होती है, उसे ऐसे हिट करके चेक करते हैं, सो दैट इफ अगर आपको लग रहा है, दैट इज़ अ गुड साइन कि हाँ भाई अब आपके न्यूरॉन्स जो हैं वो सही सही काम कर रहे हैं. लेकिन कुछ जो होते हैं जिनके न्यूरोट्रांसमीटर और न्यूरॉन्स अगर डैमेज हो चुके हैं, जो कि पैरालिसिस है, तो उनको कुछ भी नहीं पता चलेगा. चाहे आप उस पर गर्म चाय डाल दो, पानी डाल दो, बर्न हो जाएगा, पर उनको पेन नहीं पता चलेगा. अंडरस्टूड दिस पार्ट? उनका टिश्यू जरूर Yes, बर्न ma'am. होगा, आप चोट लगाओगे तो चोट भी लगेगी, सब कुछ होगा, लेकिन उन्हें कोई भी स्टिमुलाई नहीं मिलेगा, कोई भी स्टिमुलस रिसीव नहीं होगा कि मुझे कुछ पेन हुआ, मुझे कुछ दुखा, या मुझे कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है, कुछ भी समझ नहीं आएगा. अंडरस्टूड दिस पार्ट? And अगर हुआ नहीं अगर काट देने से. हो, काट दोगे तो क्या होगा, आगे वाला न्यूरॉन काम करेगा, ऐसा है? ये पूछ रहे हो? Yes, ma'am. हम्म. सबसे पहले अगर जगह काट दोगे तो आपका अगर सेंसरी ऑर्गन ही नहीं बचेगा तो सेंस लेगा कौन बेटा? ठीक है, ऑर्गन भी तो होना जरूरी है. सेंसरी ऑर्गन्स क्या है आपके? स्किन है. And small cut. Small cut. स्मॉल कट. Minor. Minor. माइनर कट से क्या होगा बताओ? Maybe one is paralyzed. आप उनको कुछ भी कर लो बेटा, आप उनको उनके पैर पे चढ़ के भी बैठ जाओगे तो उनको नहीं समझ में. ठीक है, क्योंकि पैरालिसिस में ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो रिलीज होना बंद हो जाता है, तो सिग्नल तो पहुंच ही नहीं रहा है ना, ना ब्रेन तक ना स्पाइनल कॉर्ड तक. क्लियर? इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So that is what you have to understand regarding this. Please, if you want another query है तो पूछो, नहीं तो आप प्लीज और अपने टेक्स्ट बुक से एक रीडिंग कर लो एक बार की. ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का और रिफ्लेक्स एक्शन, आपको एक रीडिंग कर लो फटाफट, सो दैट आपको कोई भी डाउट होगा तो वो यहाँ पर भी निकल आएगा.
Okay, your school has given that unit test syllabus. Yes, ma'am. अच्छा, उस हिसाब से आर वी लैकिंग समथिंग और वी आर ऑन द पेस? No, We are ma'am. applying. Yeah. Means it's all okay. We don't have any problem with the syllabus, right? No, ma'am. No, ma'am. Okay, Khushi Sharma. What are क्वेश्चन क्या था, चला गया. What are neural organs? न्यूरल ऑर्गन्स, यही सब चीजें न्यूरल ऑर्गन्स है बेटा, जो पूरे न्यूरोनिक सिस्टम को, हमारे नर्व सिस्टम को मेंटेन करता है. तो जो नर्व्स हैं वो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सब न्यूरल ऑर्गन्स में ही काउंट हो जाएंगे. एनीथिंग एल्स? और कोई क्वेश्चन? रीड टेक्स्ट बुक, एक बार एक रीडिंग ले लो तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा. Okay, somebody's question. Okay, Ayush, what do you mean by gustatory receptors and olfactory? Gustatory means taste, जो टेस्ट करने वाला आपका एबिलिटी है वो, और ऑल्फैक्टरी मतलब सूंघने वाला. ठीक है. सो आप जब खाना खाते हो तो आपने, जब कोई न्यू डिश बनती है तो आप फर्स्ट ही उसमें रिस्क नहीं लेते हो. आप पहले क्या करते हो, उसको पहले तो देखते हो कि कैसा दिख रहा है, खाना चाहिए या नहीं. फिर उसको स्मेल करते हो, स्मेल करने के बाद उसको टेस्ट करते हो. तो गस्टेटरी मतलब जो आप टेस्ट किए वो, और सूंघा, जो वो पूरा फूड का एक वो अरोमा क्रिएट करता है आपके ब्रेन में, तभी आपको वो फूड अच्छा लगता है और आप उसको खाते हो. अगर कितना भी अच्छा फूड बना हो टेस्ट में, अगर वो स्मेल अच्छा नहीं कर रहा होगा तो आप खाओगे? No, ma'am. नहीं खाओगे. अच्छा, स्मेल बहुत अच्छा कर रहा होगा पर टेस्ट अच्छा नहीं है तो भी आप नहीं खाओगे. दिखेगा अच्छा नहीं तो भी नहीं खाओगे. सो ये जो सारे रिस्पॉन्स हैं, जब रिसेप्टर्स रिसीव करते हैं तो ये सब कोलैबोरेट करते हैं कि भाई दिखने में भी अच्छा है, खाने में भी अच्छा है, सूंघने में भी अच्छा है, फटाफट खा जाओ. और या तो फिर भूख लगती है ना, जब आप स्पेशली जैसे आप बैठे हो अपने पढ़ाई के लिए और किचन में मम्मा कुछ अच्छा कुक कर रही है, तो आपका एपेटाइट जो है वो अपने आप एक्टिव हो जाता है, खुशबू भी आने लगती है, मुंह में पानी भी आने लगता है. दैट इज गस्टैटरी एंड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर.
ठीक है। Yes, ma'am. Have you gone through the textbooks? मैम Yes. मैम एक बार सिनैप्स फिर से मैं समझा सकता फिर से समझा दूँ, ठीक है। ये साइनैप्स जो है बेटा, साइनैप्स का मतलब एक गैप होता है, ठीक है। साइनैप्स एक ऐसा गैप है जो इधर टू न्यूरॉन्स या फिर मसल और न्यूरॉन के बीच में क्रिएट होता है, ठीक है। इस गैप का काम क्या है, ये गैप के थ्रू ही सिग्नल जो है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में या एक न्यूरॉन से मसल्स के ऊपर क्रॉस करने हैं इस पर्टिकुलर जगह को, ठीक है। मैम थ्रू अ केमिकल और फ्लूइड। फ्लूइड ही केमिकल है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। और न्यूरोट्रांसमीटर जब रिक्वायर्ड होगा तभी वो दिखाई देगा, अदरवाइज इट्स अ एम्प्टी स्पेस। ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है वो एक एम्प्टी स्पेस रहेगा। साइनेप्स जो है वो वहाँ पर पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा और वो सिग्नल्स को आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा। सो जैसे ही ये रिलीज होता है, सिग्नल्स फटाफट जो है वो दूसरे साइड पर पास ऑन कर देते हैं और उसके बाद जो ये पर्टिकुलर फ्लूइड है इट विल गेट डीजनरेट। अंडरस्टूड दिस पार्ट? यस मैम। और किसी को कुछ डाउट्स है? मैम जब ये इम्पल्स सिनैप्स से मैम जब ये गुजरता है तब वो केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है। फिर से बोलो बेटा, नहीं समझ आया। मैम when the impulse When going through the the synapse, okay, then it is converted into chemical signal. yeah, actually what happens that until it is in the nerve cell it is electrical, but when it has to come over at this place it changes itself, modifies itself and become chemical signal, and again it becomes the electrical one. Now it is clear to you? Yes ma'am. What are अदिति, नर्व इम्पल्स ही तो सेंसेस है जो दौड़ रहे हैं इधर से। इम्पल्स ही तो रिसीव किया ना आपने।
नर्व के अंदर जो सिग्नल दौड़ा दैट इज कॉल्ड इम्पल्स। क्लियर? Yes, ma'am. आप लोग अपना इंग्लिश वोकेबुलरी थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो बेटा। डन? रीडिंग? Yes, ma'am. फाइन। एवरीबॉडी एल्स स्टिल रीडिंग या रीड कर ही नहीं रहे? वाई साइनैप्स इम्पॉर्टेंट? साइनैप्स इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो जो ये आपके इम्पल्सेस आते हैं, जो ये सिग्नल्स आते हैं, उनको ऑर्गन तक पहुंचने का एक प्रॉपर चैनल प्रोवाइड करता है। अगर साइनैप्स नहीं होंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि मुझे कब नया रिस्पॉन्स स्टार्ट करना है और पुराने रिस्पॉन्स को ख़त्म कर देना है। जैसे समझो कि आप सपोज अभी आप अपनी सिस्टर पे या अपने छोटे भाई पे या किसी पे भी एकदम गुस्से से चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, जोर जोर से बोल रहे हो, लेकिन तुरंत आपके घर पे आपकी बेस्ट फ्रेंड की एंट्री हो जाती है, तो आपका जो वॉइस नोट है वो तुरंत बदल जाएगा ना? Yes, ma'am. क्यों उसके ऊपर भी आप चीखने चिल्लाने लगोगे? नहीं चीखोगे ना। तो वो जो रिस्पॉन्स को चेंज करना, उसको एक प्रॉपर कि मुझे किसके साथ क्या करना है, कैसे आंसरिंग करना है, कितना वॉइस नोट ले जाना है, कितना नहीं ले जाना है, देना भी है या नहीं देना है रिस्पॉन्स, वो सब कुछ साइनैप्स जो है तभी तो है। नहीं तो जिस एक फ्रीक्वेंसी पे आप सेट हो गए हो ना, वही चीज़ होते रहती है। वो मैंने आपको बताया ना मूवमेंट, कि अगर साइनैप्स नहीं होगा तो मूवमेंट करते रह जाओगे। आया समझ में खुशी? Yes, ma'am. और बाकी सब रीडिंग हो गया? Yes, ma'am. गुड। ठीक है। सो दिस पार्ट इज जो हमारा ब्रेन और न्यूरोनिक सिस्टम है वो आपको समझ में आ गया पूरा? समझ में आया? अच्छा, अब देखो, जैसे आपका ब्रेन और आपके न्यूरॉन्स आपकी बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं, सिमिलरली हमारी बॉडी में एक और चीज है, दोज आर कॉल्ड हॉर्मोन्स। ये भी हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है। सो बेसिकली सारे हॉर्मोन्स तो नहीं है, लेकिन कुछ हॉर्मोन्स है जो आपको स्टडी करने हैं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। एंड ऑर्गन्स भी आपको सारे लर्न नहीं करने हैं, बट यू शुड नो दैट कि कौन कौन जो है वो हार्मोन रिलीज करने में क्या काम करता है। सो सी दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एंजाइम समझते हो क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ते हो। You know that the one which increases the rate of the reaction, that is called enzyme, and remain unused at the end. That is what the enzymes are. Am I right? I think that is catalyst. So enzymes are itself a catalyst, na? Yes, ma'am. हाँ. So now see this hormones. Hormones जो है हमारी बॉडी में, इनका जो काम करने का तरीका है वो कुछ अलग सा है।
कैसे अलग सा है, तो वो ये चीज़ समझो कि सबसे पहले तो ये जो है बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी में रिलीज होते हैं, ऑलमोस्ट इन माइक्रोलीटर्स, और या फिर कई बार तो नैनो में भी काम चल जाता है. A little bit of pinch of it will give you the wonderful results over. इतना ज़्यादा ये चीज़ स्ट्रॉन्ग है हॉर्मोन्स. So that part you have to understand. Okay, fine. What will be the time to end the class? 4:30. 4:30. Yes, ma'am. Okay, fine. So I will be giving you a small introduction regarding hormones over here. सो ये हॉर्मोन्स है, सबसे पहले तो बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी में रिलीज होंगे और ये बहुत टाइमली रिलीज होते हैं. मतलब जब इनकी रिक्वायरमेंट है ये तभी रिलीज होंगे, उस टाइम तक रिलीज होते रहेंगे, और जैसे इनका टाइम खत्म होगा इनका काम भी खत्म हो जाएगा और ये बंद बैठ जाएंगे. ठीक है. सो हॉर्मोन्स जो है वो आपकी बॉडी में क्या क्या कंट्रोल है और क्या क्या कोऑर्डिनेट करते हैं, एक वो चीज़ समझाती हूँ. आपके फिजिकल ग्रोथ को, ठीक है, हॉर्मोन्स कंट्रोल करते हैं. फिर आपके सेक्सुअल ग्रोथ को हॉर्मोन्स कंट्रोल करते हैं. मेंटल ग्रोथ को हॉर्मोन्स कंट्रोल करते हैं. ठीक है. फिर रही बात इसके अलावा, तो आपके इमोशंस को, आपके थॉट्स को भी हॉर्मोन्स कंट्रोल करते हैं. ठीक है. सो आपके फिजिकल सेक्सुअल मेंटल जो हेल्थ है उसको तो कर ही रहे हैं, साथ साथ में आपकी इमोशनल, आपकी क्या रिएक्शन होंगे. कुछ लोग होते हैं जो मूवी देख के रोने लगते हैं, कुछ लोग होते हैं कि पूरी दुनिया रो जाए लेकिन हम नहीं रोएंगे, वैसे टाइप के होते हैं. सो जो इमोशंस हैं आपके अंदर वो कैसे हैं, किसी किसी को बहुत हंसी आती है, किसी को हंसी ही नहीं आती है चाहे जितना भी हंसा लो, किसी किसी को कितना भी खुश हो वो रोता ही रहता है. तो जो ये सारे इमोशंस हैं वो सारे इमोशंस को भी ये हॉर्मोन्स कंट्रोल करते हैं. कैसे करते हैं, कौन से पार्ट से कौन से टाइप के हॉर्मोन्स रिलीज. इवन आपका डर, द वन विच यू फियर, द वन विच यू फील लाइक, अगर आपको जैसे किसी किसी चीज़ का फोबिया है, अगर डर लगता है, तो वो भी हॉर्मोन्स की वजह से ही होता है. many of the fears. Dopamine is also hormone, right? Ma'am? Dopamine, fine, it's an hormone, but it is something which should not be artificially वो misuse होता है. And insulin? Insulin is very important hormone of your body. वो naturally release होता है. And अगर ब्लड शुगर लेवल हाई हो तो डॉक्टर एडवाइस करता है इंसुलिन लेने. हाँ, तब इंसुलिन लेने के लिए बोलता है. और ब्लड शुगर लो हो जाता है तब क्या लेने को बोलता है. वो नहीं पता. ठीक है, वो भी पढ़ेंगे. सो ये बहुत, हाँ बेटा आएंगे सारे हॉर्मोन्स पे आएंगे, डोंट वरी. नेक्स्ट क्लास में हम हॉर्मोन्स ही हॉर्मोन्स पढ़ने वाले. ठीक है. सो यू विल कम टू दैट पार्ट ऑल्सो, एड्रेनलिन वगैरह सब कुछ. आपका इमोशंस में सब कुछ आ गया. आपका गुस्सा, आपके अगर आपको जो आप की बोलते हैं ना अटैचमेंट किसी से, everything is under the controls of hormones. And the thing is, all these particular जो आपके लाइफ के स्टेजेस हैं, चाइल्डहुड, देन प्यूबर्टी, टीनेज, देन यू विल बिकम एडल्ट, देन ओल्ड, ये भी सब हॉर्मोन्स के कंट्रोल में. यहाँ तक कि आप कितनी अच्छी नींद लेते हो वो भी हॉर्मोन्स के कंट्रोल में. सो वी वेट till the next class, we will do the hormones next. But do practice the diagram of the reflex arc. अच्छे से प्रैक्टिस कर लो उसको. और बाकी read the description and keep on studying regarding this. Okay? Okay, ma'am.
Okay. So Ma'am. Thank you, ma'am. have a happy weekend to you all. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.